Good morning, class. Today we Good will morning, start ma'am. chapter 6, Lines and Angles. I am sharing a document with you. Just wait. Wait a second, beta. Chapter 6, Lines and Angles, Basic Terms and Definitions. Some of the terms you have already studied in class 7th and 8th. Just recall these terms. First, angle. What is an angle? An angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point, and that common initial point is called vertex. Next type of angles. First, acute angle. An acute angle measure between 0 degree and 90 degree. Right angle. A right angle is exactly equals to 90 degree. Next is obtuse angle, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree. Straight angle, an angle equals to 180 degree. Next is reflex angle, an angle greater than 180 degree but less than 360 degree. Next is complementary angles, two angles whose sum is 90 degree. If one angle is x, then the complementary angle is 90 minus x. Supplementary angle, two angles whose sum is 180 degree. Similarly, if one angle is x, then the supplement of that angle is 180 minus x, because the sum of supplementary angles is 180. So if one angle is x, then other angle is 180 minus x. Adjacent angles, two angles are adjacent when they have a common side and a common vertex. टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे जब उनमें एक कॉमन साइड होगी. कॉमन साइड क्या है इसमें? OB, और कॉमन वर्टेक्स O. सो एंगल AOB and angle BOC are adjacent angles. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, Yes, linear pair. Next is linear pair. Two angles are said to be linear if they are adjacent angles
formed by two intersecting lines. लीनियर पेयर कौन से एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. जो टू लाइंस के इंटरसेक्ट होने पे जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं. सो द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. अब देखो, स्ट्रेट दो लाइंस इंटरसेक्ट हुई, सो एडजेसेंट एंगल्स का सम इसने बोला 180 डिग्री होता है. वाई सो? बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन सा फॉर्म होता है? स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है. सो Yes, ma'am. एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री फॉर्म होता है. सो एडजेसेंट एंगल्स का अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. और रीजन क्या है? लीनियर पेयर. क्लियर? नेक्स्ट इज vertically opposite angles. When two lines intersect in a point, four angles form. Angle 1 is opposite angle 3 in a mutual self. When two lines intersect in a point, four angles form. अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो फोर एंगल्स बनते हैं हमारे. See in this figure, the four angles who formed are angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Here, angle 1 is opposite to angle 3 and angle 4 is opposite to angle 2. So, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. So, angle 1 is equals to angle 3 and angle 4 is equals to angle 2. 2. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is transversal. Transversal क्या होती है? A transversal is a line that cuts across two or more lines in different points. Suppose दो या दो से ज्यादा कितनी भी लाइंस हैं, उनको अगर एक लाइन कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही है, सेकंड लाइन को इस पॉइंट पे, थर्ड को इस पॉइंट पे, फोर्थ को इस पॉइंट पे, एक लाइन कट कर रही है दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो जो लाइन कट कर रही है मतलब ये लाइन एल क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल. क्लियर? सो एल क्या कहलाएगी यहाँ पर? ट्रांसवर्सल. Transversal. Okay. Next is alternate angles. The angles which lie between the two lines and on opposite side of the transversal. वो लाइन जो फॉर्म करती है टू लाइंस के बिटवीन, बीच में, और अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. यहाँ पे आपकी दो लाइन से लाइन एम. यस लक्षिता. लक्षिता डाउट है बेटा? ओके. यहाँ पर आपकी टू लाइंस हैं, लाइन एम एंड लाइन एन. एल एक ट्रांसवर्सल है. अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? जो एंगल्स लाइन के बीच में बन रहे हैं और अपोजिट साइड बन रहे हैं, मतलब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन दो लाइंस के बीच के एंगल्स हैं. और इनमें से ऑल्टरनेट पेयर कौन सा होगा? 1 और 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. एक तो लाइन के बीच में है और एक दूसरे के अपोजिट है. क्लियर? 1 एंड एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल. नाउ इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, कंडीशन है पैरेलल लाइंस को, अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल. Equal. ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट नहीं कर रही तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. ये हमारी कंडीशन है कि अगर लाइंस पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तभी हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. क्लियर? सो एंगल Yes, ma'am. 1 is equal to angle 2. Yes, Pair ma'am. of alternate angle is 1 and 2. So angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle
4. Clear? Next is corresponding angles. Similarly, if a transversal intersect two parallel lines, then the corresponding angles are equal. यहाँ पर भी सेम है, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी टू पैरेलल लाइंस को, तभी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. अब यहाँ पे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? अब कॉरेस्पॉन्ड से ही समझ में आ रहा है जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है. सपोज मैं फर्स्ट लाइन पे m पैरेलल है n के, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है L. अब यहाँ पर मैं एक एंगल ले रही हूँ 1. सो इसके कॉरेस्पॉन्ड में फर्स्ट लाइन के जिस साइड में एंगल फॉर्म किया है मैंने, एक्सटीरियर एंगल, सिमिलरली सेकंड लाइन के भी एक्सटीरियर में मैं वो एंगल फॉर्म करूंगी. ठीक है, मतलब एंगल 1 होगा एंगल 2 के. फर्स्ट लाइन की जिस साइड पे मैंने एंगल फॉर्म किया है, सेकंड लाइन के भी उसी साइड पे और उसी के कॉरेस्पॉन्ड में मैं एंगल फॉर्म करूंगी. क्लियर? सो एंगल 1 is corresponding to angle 2 and line M and N is parallel, so angle 1 is equals to angle 2. Similarly, if this angle is 3, so angle 3 is equals to angle 4. See in this figure, angle 5 is equals to angle 6. Angle 7 is equals to angle 8. And all these pair are corresponding angles. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alternate angles और corresponding angles में कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं पॉइंट से अब सॉल्व होगी. अगर इनमें कोई डाउट हुआ तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे. सो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी. मैम ऑल्टरनेट एंगल्स बता दो एक बार ही. ठीक है, समझा रही हूँ. सपोज ये दो मैम पैरेलल लाइंस है, m पैरेलल है n के, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दी है. क्लियर? सो पहले तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच वाले एंगल, ये अगर एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. ठीक है, ये 4 एंगल्स हैं जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों लाइंस के. क्लियर? इतना क्लियर है? ओके मैम. यस मैम. ठीक है. अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? अपोजिट एंगल्स हैं. ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. सो एंगल 1 एंगल 4 के अपोजिट है. सेम एंगल 1 Yes, 4 के ma'am. अपोजिट बन रहा है. सो एंगल 1 Yes. इक्वल होगा एंगल 4 के. 4. क्लियर? यस मैम. मैम ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का आपने एग्जांपल दिया ना, वन हाँ जी, वन ऑल्टरनेट इक्वल इंटीरियर एंगल्स. हाँ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2. क्लियर? ये मैं ऑल्टरनेट मैम इंटीरियर एंगल समझा रही हूँ. यस मैम. क्लियर है? अब कोई डाउट है किसी को? मैम मैम एक बार ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी समझा दो. एक मिनट. अब देखो, सिमिलरली दो लाइंस हैं आपकी m और n. ये एंगल है आप, ये ट्रांसवर्सल है आपका L. एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर बनने चाहिए एंगल्स. क्लियर? दोनों लाइन के एक्सटीरियर में एंगल होने चाहिए. इतना क्लियर है? यस. यस मैम. नाउ 1 एंगल इस 2 के एक्सटीरियर है और अपोजिट में है. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. सिमिलरली 3 किसके अपोजिट में है? यहाँ पर 4 के. सो 4 एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. Okay. Next is, if a transversal cut two parallel lines, then the sum of interior angles on the same side of transversal is equals to 180 degree. अगर दो पैरेलल लाइंस हैं M and N, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है L, सो सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स, ये है एंगल 1 एंड एंगल 2. ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स है ये. सो इनका सम होगा आपका
180 degree. Clear? Yes, ma'am. Similarly, angle 3 and angle 4 ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स है, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री. 180. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर बेटा? इसको हम Yes, को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम को इंटीरियर एंगल्स, इन जो प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज की है ना कि सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री. सो जब आप अपने क्वेश्चन में रीजन दोगे तो पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि if a transversal cut two parallel lines then the sum of interior angles on the same side of a transversal is equals to 180 degree. इसको आप को इंटीरियर एंगल करके भी लिख सकते हो. क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है अब आपको इनमें? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और अगर हाँ. उनका अगर देखो ऑल्टरनेट एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी है दो पैरेलल लाइंस को. सिमिलरली अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, आपने सपोज किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है और प्रूफ करो कि लाइंस पैरेलल है. वाइस वर्सा इसमें अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी. क्लियर? सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लाइन पैरेलल हो रही है और ट्रांसवर्सल कट, लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तभी ऑल्टरनेट एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. और ये कंडीशन भी तभी अप्लाई होगी सेम इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इफ अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस. क्लियर? यस मैम. Okay, ma'am. मैम अगर कुछ किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको कि सपोज फिगर आपको इस तरह से दे रखी है, ठीक है, बट गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि लाइंस पैरेलल है, कि एम पैरेलल है एन के, तो आप वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते एंगल्स फाइंड करने के लिए ऑल्टरनेट एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि लाइंस पैरेलल है. मैम अब डाउट है किसी को? हाँ हाँ जी. मैम एक फॉर्मूला होता है ना, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इंटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल कुछ. वो बेटा ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, वो लाइंस एंड एंगल्स में नहीं है. वो ट्रायंगल के लिए वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सपोज एक ट्रायंगल है ABC, सो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. ये बोल रहे हो ना? यस मैम. यस हाँ जी. तो मैम. ये बेटा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ये कि अगर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. सो x इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. क्लियर? फिर जो भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी अभी फिलहाल एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में यही सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो अभी तक समझाई हैं. एक बार बुक में देख लो, थ्योरम्स चेक करो, सारी थ्योरम्स कवर हो गई जो मैंने पॉइंट्स अब तक समझाए हैं. आप सबके पास बुक पे एक बार चेक कर लो, जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी समझाए हैं कवर हो गए वो सब, या कोई पॉइंट बचा है तो पूछ लो मेरे से. थ्योरम्स चेक करो, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 से पहले वाली थ्योरम्स. कर रहे हो बेटा चेक? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. देखो एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई थ्योरम बची है तो पूछ लो. मैम हो गई है सारी कवर. ठीक है, जो अभी तक समझाया समझ में आ गया, मतलब कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ
चेक करते हैं समझ में आ गया या नहीं आया आपको, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Okay, ma'am. Tell me one pair of vertically opposite angles. Any Ma'am, one pair, four. any one pair of opposite, vertically opposite angles. Angle 1, angle 4. Angle 3. Raise your hand. Angle 1, angle Just 4. raise your hand. Angle एक साथ 5 and आंसर मत angle करो. Yes, angle 5 and angle 8, 1 and 4, 2 and 3. Right. Angle 6 अब and 7. 6 and 7, Yes. 5 Angle and 3 8, and 1 Angle 2. 6 and 7. 4, 3, 2. हाँ जी, angle 6 and angle 7, 3 and angle 2. Angle 1 is vertically opposite to angle 4, 2 is 3, 5, 8, 6 8. and 7. 7. Now just raise your hands. Next, one pair of alternate interior angles. One pair मैम of, बेटा मैं ही क्वेश्चन कर रही हूँ, एक मिनट आप. ओके मैम 3 or 6. 3 and 6, right? Ma'am, 4 and 5. Ma'am, angle 4 and 5. 4 and 5. 4 3, and 6, 5. 4 and Yes. 5. 3, 6 and 4 and 5. 4 and Angle 5. 3, angle 3 is equals to angle 6 because 6. M is parallel to N. So alternate Yes. interior angles are angle 3 and 6, 5 and Angle 4 and 5. 5 is equals to angle 4. 4. Right. Okay. Krish है यहाँ पर. Yes, Krishna. Krish, one pair of corresponding angle. Krish Garg, one pair of corresponding angle. Krish Garg, unmute yourself. One pair of corresponding angle. मतलब तुम क्लास में होते हो नहीं होते हो. नेक्स्ट टाइम से बेटा सब अपनी वीडियो ऑन करेंगे, कोई भी अपना वीडियो ऑफ नहीं करेगा. मैम कहना है क्लियर? Ma'am, मुस्कान, angle 1 and एक मिनट. अच्छा कृष, मेरी वॉइस नहीं आ रही. इतनी देर से मेरी वॉइस आ रही थी, अब क्वेश्चन कर रही हूँ तो आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है. मुस्कान, आपने आंसर किया एंगल 1 एंड एंगल 3. एंगल 1 एंड एंगल 3 आर नॉट corresponding angle, they are adjacent angles. angle 1 correspond होगा angle 5 के. Angle 4 and angle 6. And first line one पे and angle 1. Angle 2, हाँ जी. angle 6. Angle 4, angle 8. Ma'am, angle 3, Angle 3 and angle 7. Angle 3, angle 7. Yes. Yeah, angle 7. Ma'am, हाँ जी. angle 3 and 7, angle 4 and 8. Angle 1, हाँ जी, angle 3. ठीक है ठीक है. 1 5 के, मुस्कान एक बार फिर से क्लियर कर लो. 1 is 5 के कॉरेस्पॉन्ड होगा. फर्स्ट लाइन पे सेम डायरेक्शन में ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सेकंड लाइन में सेम डायरेक्शन में जो ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है. सिमिलरली 2 is correspond to angle 6. 6. 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. 7 4 8. क्लियर? Yes, ma'am. मतलब अब कोई डाउट नहीं है इन सारे पॉइंट्स में. क्लियर है ये आपको? Yes. एक्सरसाइज 6.1 ट्राई करना एक बार, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 नेक्स्ट क्लास में. Okay, ma'am. ओके मैम. ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे, अभी टाइम है तो. मैम 5 मिनट रह गए हैं. हाँ, एक क्वेश्चन और.
Okay. Find the value of x and y. How if m is parallel to n and l is transversal, then find the value of x and y. बस इतना बताओ simply. x Ma'am, को फाइंड करने के लिए कौन सा मैं- रीजन दोगे, y को फाइंड करने Ma'am, के लिए कौन y सा? equals to 20. Ma'am, y equals to 20 degree 20 degree corresponding Ma'am, angle और Ma'am, x plus 20 degree corresponding equals to angle and 180 x equals to पेयर है. yes. बेटा कंबाइन yes. आंसर नहीं करना था अनन्या, मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया. जिसे नहीं समझ में आया ना, मुझे उससे पूछना था कि कैसे होगा ये. ईशान बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? ईशान, am I audible? Yes, ma'am. Okay, Ishan, tell me how you will find the value of y. y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे ईशान? से समथिंग बेटा. चलो x की वैल्यू बता दो. x या y में से जिसकी भी समझ आ रही है उसकी वैल्यू बताओ, कैसे फाइंड करोगे? यहाँ हो ईशान? Ma'am, L 20 degree. y is 20 degree because angle y is correspond to angle 20 degree. So angle y is 20 degree corresponding angle. And x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे दिव्यांग? x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी दिव्यांग, अभी आपने इसके लिए बताया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से. x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे दिव्यांग? x और 20 डिग्री कैसे एंगल्स हैं? दिव्यांग ऑल्टरनेट है, एडजेसेंट है. साथ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं साथ वाले, ठीक है. x और 20 कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट साथ वाले. और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है एडजेसेंट एंगल से, तो सिर्फ इतना देखो कि ये जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो एंगल x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर से और Yes. A plus लाइन B पे equals बनने to वाले 180 एंगल्स का degree. सम 180 डिग्री. आपको देखो बेटा, प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई है जो समझाई है, बट उन्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो मेन है, ठीक है. तो जितनी मैं आपके साथ पीडीएफ एक बार शेयर कर दूंगी, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, इन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना सारे पॉइंट्स को, और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना इसी तरह से, जिस तरह से मैंने फिगर के साथ सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में इसे इंट्रोडक्शन में लिख लेना. क्लियर? मैम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में. हाँ जी, चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन. ओके मैम. सेम जिस तरह से फिगर के साथ मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरह से फिगर के साथ सारे पॉइंट्स लिख लेना और एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेना. ये पॉइंट्स अगर नहीं क्लियर हुए, अगर फिर भी कोई डाउट होता है जब खुद से रिवाइज करते हो, तो नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट क्लियर करना अपना इन पॉइंट्स को लेके, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम होगी. क्लियर? Yes, ma'am. जो मैंने कल आपको पीडीएफ सेंड की थी वो आपको नहीं नोट करना. वो जो मैंने कल आपको पीडीएफ सेंड की थी ना, वो उसमें सिर्फ सारे पॉइंट थे आपके लिखे हुए, फिगर के साथ कुछ भी एक्सप्लेन नहीं था. इसलिए ये पॉइंट मैंने खुद लिखे हैं फिगर के साथ एक्सप्लेन करने के लिए. तो वो सिर्फ आपका एक बार रीड करने के लिए था कि उन सारे पॉइंट्स को रीड कर लेना. नोटबुक में इस तरह से लिखोगे आप फिगर के साथ. क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, है? ma'am. मैम आधा मिनट बचा है. ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर दे. अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना या नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. थैंक यू. मैम 6.1 ट्राई करनी है ना? 6.1 यस. Okay, ma'am. ओके.